Hi Pooja, very good morning. Good morning, sir. First of all, congratulations. Thank you. Thank you so much. So पूजा क्या रिएक्शन था फर्स्ट जब रिजल्ट आया उस मोमेंट पे कैसा फील कर रहे थे किसने बताया आपको आपने चेक किया रिजल्ट I myself checked it. I was having lunch at that time, so I shifted to a room where I was alone. Then I checked the result, and for a second, I didn't find my name. हम्म So for that 1 nanosecond, it was I imagined, and it was very difficult. But then I found my name, and after that, so I started shouting, and everybody came around, and then call started coming, and I didn't check my marks until after I think 2 3 hours. I didn't check my rank because I didn't have time to, take it in. राइट सो पूजा प्लीज टेल अस अबाउट योर बैकग्राउंड आई मीन योर I क्वालिफिकेशन Yes, या I belong to a Mewari family. We do not have educational background. Nobody in my family is that educated or in law field. All of them are businessmen or women. So, or otherwise CA. That is the most we have, or doctors, but not anything under law and advocate, nothing. So I did my graduation from Delhi University. Then I did my law from Mumbai University, and then I did my LLM from Udaipur. I'm basically from Rajsaman, and then I got married in Udaipur only. ओके So I was preparing before also, but I wasn't that serious also, and I didn't know much about it. So I gave 2021 attempt, but that was just a futile attempt from myself. It wasn't my best try. So then after that, I started taking it seriously. I took proper coaching, proper guidance. I shifted to Jaipur for coaching after my marriage, which राइट was all along a different chapter and a different story. And I stayed in Jaipur for almost a year in 2022 to 2023. And this time when the vacancy came, I was prepared well. But then the day vacancy came was the same day I found out that I was expecting. So these 8 months have been a very different journey. So Pooja, now you have started a different league. Nobody is Yes, from your family is in legal background और आपने अब yes, एक नया ट्रेडिशन अपनी फैमिली में स्टार्ट कर दिया है. yes, सो आई एम वेरी श्योर कि आपकी फैमिली में आपके रिलेटिव्स में जो यंगस्टर्स हैं वो yes, अब आपसे इंस्पायर होंगे. इनफैक्ट आपके जो फ्रेंड्स में जो नोन है उनको yes. आपने एक इंस्पिरेशन दी है कि यस आप लॉ करके यू कैन ऑल्सो मेक ए करियर इन जुडिशरी. और इस बार का जो रिजल्ट था सो व्हाट वी हैव सीन 68% फीमेल कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है. Yes, सो 150 out of 222. या सो पूजा मैं 2011 से आई एम इनटू टीचिंग. सो आई हैव बीन टीचिंग बट मैंने ये ऑब्जर्व किया है लास्ट कुछ 5-6 ईयर्स में कि जो फीमेल कैंडिडेट्स का जो ओरिएंटेशन है वो लॉ में काफी अब एक डेवलप हुआ है जो पहले नहीं होता था. फीमेल को बोलते थे ना कि आप लॉ करना है. सो मतलब बॉयज ज्यादा प्रेफर करते हैं लॉ करना लेकिन अब फीमेल कैंडिडेट ज्यादा प्रेफर कर रही हैं और इसके साथ साथ जुडिशरी में भी वो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रही हैं. सो ये एक बहुत ही पॉजिटिव जो एग्जाम्पल है वो आप लोगों ने सब लोगों ने सेट किया है. सो पूजा आप क्या आपको लगता है कि इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी आपके साथ में सिंस यू टोल्ड अस दैट यू आर मैरिड तो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं. सो हाउ डिड यू मैनेज योर टाइम? So it was difficult, of course, but I live in a joint family. It's a big family. I have everyone. It's a big joint family. It was difficult, but of course I had their support. Without their support, it wouldn't be possible. And then when I shifted to Jaipur, so then I had to focus on me and my studies only. So that राइट also helped. Living alone also helped a lot. And after that, also because family support is very important. Without it, it is not possible. Time management and everything. Even right now, in throughout my pregnancy, also I gave this entire RGS with my pregnancy. Currently, I'm 8.5 months pregnant. So throughout this also, I think I managed somehow with my family support to study for 12 to 13 hours a day. So that is important. Keep management and support. Family support is most important, and time management. Of course, you have to set out your priorities. एंड द सेक्रीफाइस एज वेल जो आपने किया है जो आपने प्रायोरिटीज अपनी सेट की है. Sacrifice a lot, or there are a lot of sacrifices involved. I don't consider it's an exam. It's kind of a tapasya where you have to give up so many things. Then only you can manage above 8 hours a day. Otherwise, 8 hours a day is the minimum. Uske upar it's very difficult to reach. राइट. सो पूजा हु इंस्पायर्ड यू? आपको किसने ये इंस्पायर किया कि मुझे जुडिशरी में आना है
या आइडिया कैसे आया जुडिशरी में आने का? When I shifted, as I mentioned, I did my law from Mumbai. हम्म, So when I shifted back to my hometown, it's a very small place, Rajsamand. It's a very small town in Rajsamand. I live in Kakroli. So when I joined the court there, and as you must know that in small places, courts are majorly male-dominating places. राइट, ट्रू। Where, like, when I joined, I think I was the only girl there. There were 2, 3 ma'ams who were super senior. I was the only intern there. So when I joined and people came to know that I did my law from here, so my sir, my immediate boss, in fact, he forced me. Ki ma'am, you shouldn't do practice, you should do RJs. And that time I didn't even know what RJ stands for. So he was the one who kept saying ki ma'am nahi karna chahiye tum form, but he practically forced me to fill the form. So first time I wasn't prepared, but then when I gave pre, I just solved earlier paper and I gave pre. I didn't know anything about RJs. Had I cleared it, I don't know what means was at that point of time. So he practically forced me to fill my forms and everything. And when I gave it, I think I was just 1 mark less than that year's pre cutoff. That's when I realized ki, okay, I am capable of doing this and I should do it sincerely. So that's when I started doing it, and I have seen the judicial magistrate first class posted in my town. And they're majorly they are women. राइट। So I've seen the kind of life they're living, the kind of stability that kind of job gives. Because practicing as an advocate as a woman, does not give you that much of stability. ट्रू। If you are not married, then someday your location is going to change. Then you have to set up your practice in another city. Language barriers, there are a lot of things. So stability is one thing that I think women should look for in judicial services. So today we must congratulate your senior as well. May I know his Yes. name? Huh. Advocate Mukeshji Radhi sir, in my local newspaper, I have mentioned his name also. Okay. Yes. So मुकेश सर, congratulations and thank you so much. आप जो इंस्पायर कर रहे हैं अपने जूनियर्स को जुडिशरी में आने के लिए, that is really commendable and thank you so much सर। आपने इतना इंस्पायर किया। एटलीस्ट एजुकेट करना, अवेयरनेस क्रिएट करना, सबसे पहली स्टेज ही वही होती है, Yes. राइट? I was in Maharashtra, so I didn't know what RJS was. So he was the one who informed me about it. He told me about it and everything. एंड पूजा, हाउ वाज योर इंटरव्यू? इंटरव्यू में काफी लोग बहुत नर्वस होते हैं, उनको लगता है कि हाँ पैनिक करते हैं, हाउ विल आई मैनेज एन इंटरव्यू में, कैसे पैनल होगा, कैसे क्वेश्चंस होंगे, सो हाउ डिड यू मैनेज दैट स्ट्रेस? I think for interviews, mocks are a must because mocks give you, what I took in my mind was they are not there to check my knowledge. They are just there to check how I respond when I don't know the answer. If I fumble, they are there to check my confidence. And that's True. what I had in my mind. It's okay if I don't have an answer. I just have to be calm and confident. And that in that mocks helped. I gave around 5, 6 mocks and they helped. And even in some mocks, I got very positive feedbacks also. Ki, हाँ ma'am, अच्छा है, you have confidence in that. And when I went into for my interview, luckily I have the justice I had a very pleasing face. He had, I don't know 100% his name, but he had a very pleasing face. So that face itself set me straight ki no, मैं बैठ गई आराम से. And they started questioning and I started, if I didn't know the answer, I answered very politely, sir, I don't know. If I had confusion in any answer, I said, sir, correct me if I'm wrong. Once they responded that it's the right what I'm saying, then I went ahead. कि नहीं मेरे को आता है, I went ahead. So my interview went well. And just after coming out of interview, I told my husband that I don't think I'll get less than 26, which is a very high score in, and I don't know, I was just confident. And the day result came, I checked my marks, it was 25, so I was happy. So they made sure कि आप comfortable feel करो। Yes, they are very easygoing, they are very comfortable. जाते वक्त they insist that you take a chocolate and leave. That way they are very comforting. So what kind of questions they asked Questions you? were wide variety. It was not just limited to law. I have LLM also, so it was related to IPR also. Then it was related to current events also, Ukraine, Israel, and even some random questions like space. They asked me about Polestar, Nadan Star, Dhruv Tara, and everything. So पूजा, it's random. या मैं इनफैक्ट जो द इंटरव्यूज, मॉक इंटरव्यू दैट वी वर कंडक्टिंग, Yes. तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स आए आपकी तरह एंड उन्होंने कहा कि सर मैंने एलएलएम आईपीआर में किया है। सो आई आस्क्ड देम
multiple questions about IPR. Yes. एंड देन जब फीडबैक का टाइम आया तो दे आस्क्ड मी से आप इतना आईपीआर से क्यों पूछ रहे थे, तो आई टोल्ड देम कि आपका स्पेशलाइजेशन आईपीआर में है, सो यू मस्ट नो अबाउट इट. Yes, yes. तो ये सारे स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि जो आपने जिस सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन किया है उसकी नॉलेज आपको कितनी है. एंड जीके के बारे में, करंट जीके के बारे में हमने मॉक में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे करंट जीके के बारे में. सो हाउ डिड यू प्रिपेयर इट? जीके को आपने कैसे प्रिपेयर किया? We had 15 days, everybody had almost 15 days only. So मुझे लगा लास्ट टाइम करना है, पूजा मेहनत कर ही लेते हैं. आई स्टार्टेड मेकिंग प्रॉपर नोट्स कि ये बोलना है कि आरजेस क्यों बनना है, तो व्हाट इज माय थॉट प्रोसेस. आई मेड नोट्स फॉर दैट. आई मेड नोट्स फॉर माय हॉबीज. देन जीके में आई कवर्ड राजस्थान का एंटायर पार्ट. देयर वाज अ बोनस क्वेश्चन. आई थिंक दे वर आस्किंग एवरीवन कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में राजस्थान के 3 लोगों का नाम बताओ इंडिया में करंटली. राइट. लकीली मैं वो प्रॉपरली जीके राजस्थान का प्रॉपर रिटन नोट्स में प्रिपेयर करके गई थी. तो जैसे मैंने तीनों नाम बता दिए, तो उन्होंने ये भी पूछा कि वो राजस्थान में कहाँ से बिलोंग करते हैं. और क्योंकि मैं इतना प्रिपेयर करके गई थी, मुझे ये भी पता था वो तीनों राजस्थान में कहाँ से बिलोंग करते हैं. सो दैट ऑल्सो हेल्प्ड अ लॉट कि थॉरो रिसर्च. इनफैक्ट हमने मॉक इंटरव्यूज में कैंडिडेट से ये क्वेश्चन पूछा था कि इंडिया के लॉ मिनिस्टर कौन है. यस. और राजस्थान, He's from Bikaner. That question helped me a lot. इनफैक्ट मैंने कैंडिडेट्स को ये भी बताया कि वो भी पहले ब्यूरोक्रेट थे, वो पहले आईएएस ऑफिसर थे. Yes. सो देयर वर मेनी कैंडिडेट्स एंड दे वर नॉट श्योर अबाउट इट. ऐसा कई कैंडिडेट्स साथ में हुआ, लेकिन हमने उनको बताया कि इस तरीके के क्वेश्चंस प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आपने उन सारे एरियाज को कवर किया. एक 360 डिग्री प्रिपरेशन आपने पूजा की. Yes. Even I researched every current event. तो भी बहुत कुछ मिस हो गया. जैसे उन्होंने क्रिप्टो करेंसी पूछा, तो डेफिनेटली ऑफ कोर्स आई न्यू. बट देन आगे व्हेन यू गो इनटू एन आंसर, वो लोग और पूछ के डीप में ही जाते हैं, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो गया था. बट आई अपोलोजाइज कि सर सॉरी. एंड दे आस्क्ड मी अबाउट एआई एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को दे कनेक्टेड. सो अगर आपको एक आंसर आता है तो फिर वो डीप में जाता जाता है. तो मेक श्योर कि अगर आप प्रिपेयर करो तो पूरा ही करो, अदरवाइज करो ही मत. अच्छा पूजा, एक जो काफी कैंडिडेट्स का एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि बेराक को कैसे प्रिपेयर करना है. आई मीन, डू आई नीड टू लर्न द एंटायर बेराक? मतलब मुझे एकदम मेमोराइज करना है एक एक लाइन, एक एक वर्ड, और सिर्फ की जो वर्ड्स होते हैं वो सफिशिएंट है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? आई हैव अ वेरी डिफरेंट थ्योरी अबाउट इट. मेरे को ऐसा लगता है आप कंज्यूम पूरा करो. लिसन, इट इज नॉट 100% कि आप वो पूरा का पूरा उतार पाओगे. राइट. तो अगर आप ऑलरेडी थोड़ा ही कंज्यूम कर रहे हो, थोड़ा ही टेक इन कर रहे हो, तो उस थोड़े का भी 80% ही यू विल रिकॉल व्हेन यू आर राइटिंग द आंसर्स. एंड प्री में तो एक एक वर्ड इज इंपॉर्टेंट. रीजन बीइंग प्री में बहुत बीच बीच में से क्वेश्चन आते हैं. Illustrations, इस बार I think 2 to 3 questions were from illustrations. Illustrations, yeah. Explanations are also know that कि exact वो illustration कहाँ है, it's very important. तो बेराक you should be very much thorough. मतलब बहुत सारी books नहीं रेफर करनी चाहिए in my personal opinion, because you get confused. और आप कितनी भी बुक्स रेफर कर लो, वो फोमो हमेशा रहेगा कि अरे वो उस बुक से पढ़ रहा है, वो उस बुक से पढ़ रहा है. सो आई थिंक बेराक इज मोर देन इनफ, लेकिन उसको आप थरली करो. क्योंकि अगर आप उसी में से सिर्फ 80% कर रहे हो तो वहां आप 50% लिख पाओगे. लेकिन अगर वो आप 100% कर रहे हो तो शायद वहां 70 पूरा लिख पाओ. सो मुझे लगता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. केस लॉस के लिए ऑफ कोर्स यू कैन रेफर अदर थिंग्स, बट उसके लिए भी आई थिंक अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेनी चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि लास्ट मोमेंट पे आप 5-6 बुक्स खोल के बैठे हो. दैट शुड नॉट हैपन. ओके, ये आपने एक अच्छा पॉइंट यहाँ पे रेज किया. केस लॉस के लिए क्या करना चाहिए? कोई, जैसे कि मैं स्टूडेंट्स को एडवाइस करता हूँ दैट यू कैन मेक योर सेपरेट रजिस्टर मेंटेन करो आप, जिसमें सब्जेक्ट वाइज आप केस लॉस की फैक्ट्स लिख लो. आपने कैसे किया केस लॉस को? मैं अगर जैसे आई वाज इन अ कोचिंग, तो जो सर के नोट्स है उसके बाद मैं साथ ही सर ही मेंशन करते थे अपना पेज खाली रखो. तो मैं घर जाके अपने पर्सनल नोट्स बनाती थी. उस टाइम मुझे जितनी बुक्स रेफर करनी है मैंने कर ली, बट उसके बाद मैं उन बुक्स को हाथ नहीं लगाऊंगी. वो मेरे नोट्स में मैंने सब केस लॉ लिख दिए. इनफैक्ट मतलब मेरी प्रिपरेशन इस टाइप की थी कि मैंने केस लॉ लिखा है तो मैं आगे सिर्फ लिखती हूँ कि नेम ओनली. मतलब ये मुझे सिर्फ प्री तक पढ़ना है, इसकी मुझे फैक्ट्स और कंटेंट्स की जरूरत नहीं. ये प्री के क्वेश्चंस के लिए. और अगर कोई अच्छा केस लॉ है, फेमस केस लॉ जिसके फैक्ट्स इज इंपॉर्टेंट, तो मैं उसमें पूरा लिखती थी. अदरवाइज मेरे केस लॉ में नोट्स के आगे लिखा है नेम ओनली. मतलब मुझे सिर्फ नाम याद करना है उसका. बट केस लॉ मुझे लगता है साथ में रखना इज बेटर, बिकॉज बाद में वही होता है, बहुत कंटेंट हो जाता है. एंड में एक बुक, एक बैराक इज इनफ फॉर वन सब्जेक्ट. एक नोटबुक, बैराक, दैट्स इट. राइट. सो यू बिलीव नोट्स मेकिंग
is equally important. Note यस, taking. इससे बहुत राइटिंग प्रैक्टिस भी होती है। होता क्या है ना, अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो ना तो राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होती है। True. नोट से राइटिंग और स्पीड इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आई थिंक मेंस की प्रिपरेशन में मैंने जजमेंट राइटिंग, मतलब दिस इज माय फर्स्ट टाइम आई हैव गिवन मेंस, तो मैंने सीखा भी तभी उन 45 डेज में जजमेंट राइटिंग, और लिखा भी तभी। तो मैं दिन के 4 4 जजमेंट, मतलब मैं टाइम करके प्रैक्टिस करती थी कि आज 1 घंटे में हुआ चार्ज प्लस जजमेंट, उसको 45 मिनट्स में कैसे लाऊं, क्योंकि वहां पे मैक्स 1 घंटा बचेगा 2 जजमेंट लिखने के लिए। True. उस टाइम दिमाग भी लगाना है कि लिखना क्या है, तो वो प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लिखने की। So mains की भी proper practice important साथ है. ही प्री के साथ ही, क्योंकि अगर आप प्री में तो सोचोगे, अब इस बार मतलब हमेशा हम सोचते हैं 3 महीने मिलते हैं बहुत कुछ होता है, इस बार 45 डेज ही थे। तो अगर True. आप पूरे प्री में, क्योंकि ऑब्वियसली प्री में बहुत टाइम होता है, क्योंकि जब से आप पढ़ रहे हो तब से आप प्री के लिए ही पढ़ रहे हो, तो उसी टाइम अगर आप लिखने की प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपकी राइटिंग पे आप वर्क कर सकते हो, विच इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है, राइटिंग और लिखने की प्रैक्टिस। ये बात पूजा मैं अपने स्टूडेंट्स को डेली क्लास में बोलता हूँ कि प्लीज डेली ट्राई टू राइट एटलीस्ट 1 पेज. आप किसी भी टॉपिक पर लिखना स्टार्ट करो, डेली प्रैक्टिस करो. ये आपकी राइटिंग स्किल्स को, आपका जो कोऑर्डिनेशन है आपके हैंड का और आपके माइंड का, वो इंप्रूव करेगा. क्योंकि जब प्रैक्टिकली आप पेपर लिखते हो ना, तो आई थिंक लास्ट पेज तक जब आप लिखते हो तो वो वाला पेज शायद आप भी नहीं पढ़ पाओगे वापस ट्रू. खुद। बट ट्रू. वही आपने अगर प्रैक्टिस की है तो लास्ट पेज रीडेबल हो जाएगा। ट्रू. क्योंकि टाइम मेंस में मतलब बहुत मैनेजिंग मुश्किल हो जाता है, तो लास्ट पेज तक सिर्फ आप डॉक्टर वाली लिखाई पे आ जाते हो। सो पूजा, जो एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है एंड दोज हु आर प्लानिंग के आरजीएस देना है इन फ्यूचर, तो उनको आप क्या सजेस्ट करोगे? 3 आपकी तरफ से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आपको लगता है कि उन्हें कवर करने चाहिए. 3 एस्पेक्ट्स तो वुड बी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप पढ़ रहे हो, वेल एंड गुड, आप पढ़ो, बट प्लान पढ़ो। हम्म. हम सबको पता है कि पढ़ना क्या है, सिलेबस सबके पास है, ट्रू. कोर्स स्ट्रक्चर सबके पास है, बट उसको कैसे पढ़ना है, कितना रिटेन करना है, कितना कंसाइज फॉर्म में पढ़ना है, उसके लिए आइदर गेट गाइडेंस, और अगर आपके नोन में कोई है तो मतलब इट्स नो हार्म इन आस्किंग। प्लान्ड पढ़ाई होनी चाहिए, बिकॉज दैट वुड सेव अ लॉट ऑफ योर टाइम एंड एनर्जी, और आप सही जगह पे लगाओगे। उसी में ये भी है कि इंग्लिश हिंदी इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब इंग्लिश हिंदी से इंपॉर्टेंट कुछ है ही नहीं, क्योंकि लॉ सब पढ़ रहे हैं। इवन इंग्लिश हिंदी ग्रामर प्री में इस बार लकीली इजी आई थी, बट ऑब्वियसली उनके लिए इजी थी जिन्होंने पढ़ी हुई है। ट्रू. जिन्होंने नहीं पढ़ी उनके लिए वो हिंदी भी बहुत डिफिकल्ट होगी। तो इंग्लिश हिंदी ग्रामर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेम गोस फॉर मेंस में इंग्लिश हिंदी। मतलब आई थिंक जैसे इस बार सबके साथ ही हुआ इंग्लिश में, सो आई एम नॉट कंप्लेनिंग और एनीथिंग, बट अगर इंग्लिश ऐसे में, मतलब आई हैड माई कैलकुलेटेड मार्क्स इन एवरीथिंग, तो वो इंग्लिश ऐसे के मार्क्स से, मतलब what my calculated marks were, rest all of my marks were same. जैसे मैंने बताया इंटरव्यू में I expected 26, I got 25, so all of my marks were same, but English ऐसे में I got only 14, and अगर जो मेरे expected थे mine was just 25 also, तो भी वो भी कम थे, but I had a very decent expectation, बट वो 25 भी अगर होते, आई वुड हैव 11 मार्क्स प्लस, तो मैं टॉप 10 में होती। सो ट्रू. और ऐसा, एंड आई एम नॉट कंप्लेनिंग एट ऑल, बिकॉज मैंने दूसरे लोगों के मार्क्स देखे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, दे हैड 60 प्लस इन लॉ एंड दे गॉट जस्ट 3 इन इंग्लिश, एंड इट्स नोबडीज फॉल्ट आई गेस, बिकॉज अब पेपर चेकिंग कैसी हुई, सबके साथ ही हुआ है, सो इट्स मतलब ओके, नो राइट. कंप्लेनिंग और एनीथिंग, बट स्टिल इंग्लिश एंड हिंदी ऐसे आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप प्री के टाइम से ही प्रैक्टिस करना चालू कर दो। मुझे पता है कहना बहुत इजी होता है, मैंने भी नहीं की थी प्री के टाइम से प्रैक्टिस, बट करनी चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आप लिख नहीं रहे हो, बट एटलीस्ट पढ़ना स्टार्ट कर दो ऐसे। वो रात को एक ऐसे पढ़ लिया आज, कोई बात नहीं, प्री के टाइम से तो उतना कर लो, वो भी बहुत ज्यादा हो जाता है, बट इंग्लिश हिंदी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एटलीस्ट स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट है. स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश हिंदी मैं तो कह रही हूँ, बुक खरीदना वो भी एक फर्स्ट स्टेप हो जाएगा कि आपने एक बार खरीद के रख ली है, वरना सब मीम्स के टाइम खरीदते हैं, तो उतना सा भी करना इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंग्लिश हिंदी आप रिजल्ट भी चेक करोगे ना, इंग्लिश हिंदी इज एवरीथिंग। चाहे आप प्री राइट. का देखो, चाहे आप मेंस का देखो, इंग्लिश हिंदी इज एवरीथिंग। अच्छा पूजा, एक कई स्टूडेंट्स ये भी बोलते हैं कि ना, मैं थोड़ा सा इंटरेस्ट लूज कर रहा हूँ, कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें, थोड़ा डिप्रेशन मुझे फील हो रहा है, आई नीड मोटिवेशन. सो उनको क्या सजेस्ट करोगे आप? ये दोनों ही मेरे बाकी के 2 पॉइंट्स थे कि
इट इज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग प्रोसेस, वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। आपको बहुत सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, आपको बहुत आपकी सोशल लाइफ छोड़नी पड़ती है, बहुत कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं, इट्स ट्रू। अब जैसे अभी जिन्होंने भी दिया है, दे हैव बीन वेटिंग सिंस 2021। ट्रू। तो 3 साल का जो ये लोगों का प्रोसेस होता है, उसमें ऑब्वियसली आप इंटरेस्ट लूज करते हो, सब कुछ होता है। बट आई थिंक एवरी डे वो एक रिमाइंडर लगाना पड़ता है खुद के लिए कि वाई आई स्टार्टेड। मतलब जैसे मेरे तो फोन का मैंने वॉलपेपर ही यही था, रिमेंबर व्हाई यू स्टार्टेड। कि हर रोज सुबह मैं वो देखूं, मुझे याद आए कि क्यों मैं यहाँ पे हूँ, क्यों मैं ये कर रही हूँ। मतलब दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। इट इज द स्मॉलेस्ट ऑफ थिंग दैट मैटर, कि मैं सुबह उठते ही फर्स्ट चीज देख रही हूँ कि रिमेंबर व्हाई यू स्टार्टेड। ऑलवेज तो यू शुड। उसके अलावा मुझे लगता है कि हार्डवर्क तो है ही है, बट जब तक पॉजिटिव अप्रोच नहीं होगा ना, आप अपने आप में बिलीव नहीं करोगे, आप खुद को कौन मतलब आपको ट्रूली आपके मन से बिलीव होना चाहिए कि यू आर गिविंग योर बेस्ट। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ हार्डवर्क करते जाओ और फिर आप थोड़ा भी कुछ हो जाए नेगेटिव में चले जाओगे, तो दैट वॉन्ट हेल्प। और उसके लिए थर्ड पॉइंट जो मेरा है कि सराउंड योर सेल्फ विद गुड पीपल, वो मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रही हूँ फ्रेंड्स कम कर दो, लिमिट कर दो, क्योंकि आई एम एट अ डिफरेंट एज। मोस्टली जो बच्चे एलएलबी और बीए का बीए के साथ देते हैं, दे आर एट अ डिफरेंट एज, तो उनके लिए ये मुश्किल होता है फ्रेंड्स लिमिट करना, डिस्टेंस करना। बट आई एम जस्ट सेइंग चूज वाइजली, कि आप उन लोगों के साथ रहो। हो सकता है उनको आपकी फील्ड, आपकी कंपटीशन स्ट्रगल के बारे में पता नहीं हो, दैट इज ओके। बट एटलीस्ट उन लोगों के साथ मत रहो जो आपके हार्डवर्क या इंटेंशंस को क्वेश्चन करते हैं, या नेगेटिव क्वेश्चंस या आपकी वाइब खराब करते हैं और ट्राई टू पुट यू डाउन। राइट। योर्स मतलब उनसे थोड़ा डिस्टेंस रखो, बिकॉज दैट विल हेल्प यू लॉट, क्योंकि ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग और बहुत ही लंबा प्रोसेस है। तो उसमें थ्रू आउट आई थिंक आपको ऐसे लोग चाहिएंगे। इट्स ओके अगर वो आपको मोटिवेट नहीं भी करे, बट आपको जबरदस्ती नीचे लेके आए, उन लोगों से तो बहुत दूर रहो। एंड सब लोग वापस आ जाएंगे, एक बार आप बन गए ना, सब वापस आ जाएंगे। तो आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, एवरीबडी वुड कम बैक। सो डोंट वरी, जस्ट फोकस ऑन योरसेल्फ, एंड इट्स ओके टू बी लिटिल बिट सेल्फिश। अपने मोटिव्स, अपने एम्बिशन के लिए इट्स ओके। एंड लास्ट में पूजा, आई वुड से जितने भी एस्पिरेंट्स उनको बोलूंगा कि बिलीव इन योरसेल्फ इज द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस। दैट इज ट्रू। मतलब मैं आई नो समवन जो वी हैड द सेम स्कोर, वी हैव एवरीथिंग सेम, बट वो एक हल्का सा मुझे लगता है थॉट प्रोसेस का फर्क पड़ जाता है। जैसे मैं मेंस के बाद जब निकली थी, आई सेड मैं मतलब माय पार्टनर टू थिंग्स ओनली, कि या तो कोई बच्चा मुझसे ज्यादा डिजर्विंग है, या चेकिंग बहुत स्ट्रिक्ट है। इसके अलावा देयर कुड बी नो रीजन कि मेरा नो ही होगा। तो वो जो एक बिलीफ होता है ना, वही वही बाहर आके अगर, और वो बिलीफ इसलिए भी था बिकॉज आई गिव माई बेस्ट। वो बेस्ट तभी आ सकता है व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग एवरी डे, आपको पता है कि हाँ ये होगा तो मैं ये कर लूंगी। वो एक बिलीफ खुद में होना, और वो हर रोज होना पड़ेगा, एंड इट एंड इज यू डिफिकल्ट। एंड यू डिडंट ब्लेम एनीवन, आपने किसी को ब्लेम नहीं किया इसके लिए, डेस्टिनी को, चेकिंग को। आई वॉज डिस्कसिंग समथिंग विद समवन, तो मैंने यही कहा कि ये जो 45 days मिले हैं ना, हम्म। मुझे लगता है कि अगर ये 3 महीने भी मिलते ना, तो मैं 19 का 20 ही कर पाती। इसका मतलब जो मैंने अभी किया मैं वही करती। सो आई हैव गिवन माई बेस्ट, आई हैव गिवन माई 100%। तो वो बिलीव और वो कन्विक्शन तभी आते हैं जब आपने एक्चुअली उतना सब किया है। मतलब आई थिंक बेसिक थिंग्स इज यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। आप दुनिया के लिए तो कह रहे हो हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, जब आपको ऑनेस्टली पता है आप क्या कर रहे हो, दैट वोंट हेल्प। आपको खुद के साथ ही ऑनेस्ट होना पड़ेगा कि नहीं यार, आज मेरी ट्रूली सिर्फ 3 घंटे ही पढ़ाई हुई है, मुझे कल 5 तो करनी पड़ेगी। वो बैलेंस खुद को, मतलब आप जब तक खुद से ऑनेस्ट नहीं हो तब तक नहीं होगा। पूजा, आई मस्ट शेयर दिस विथ यू, मैंने जितने भी स्टूडेंट्स के साथ में इंटरेक्शन किया है, अब तो जो सारे आरजेएस बन गए हैं आपकी की तरह, उन सब में एक जो मुझे कॉमन जो मेरी ऑब्जर्वेशन रही ना, सबने एक लाइन बोली है दैट यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ योर प्रिपरेशन। सो वो ऑनेस्टी जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इस प्रिपरेशन के लिए। ये सबने, ये लाइन आप सबने कॉमन कही, ये सब में कॉमन है। यस एंड यस। आई बिलीव के जो स्टूडेंट्स इस बात को समझ रहे हैं, जिनको इस बात की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई है, और अगर वो इसको फॉलो करेंगे तो उन्हें सक्सेस जरूर मिलेगी। 100%। और बहुत छोटी छोटी चीजें थी, जैसे मैंने वॉलपेपर वाली बात बताई। फिर जैसे आई यूज टू यूज दिस ऐप जिसमें आप अपना मतलब टाइम पॉज प्ले करते हो। राइट। तो अगर कोई, मैं 1 मिनट पानी भी पी रही हूँ तो आई यूज टू पॉज दैट। तो एट द एंड ऑफ द डे अगर मैंने सिर्फ 4 घंटे भी पढ़ाई की, तो मुझे ये पता है कि वो 4 इफेक्टिव पढ़ाई की है मैंने।
सिर्फ ऐसा नहीं कि टाइमर चल रहा है, मैं फोन चला रही हूँ वो, और होता है, इट इज वेरी इजी टू गेट डिस्ट्रैक्टेड, क्योंकि बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है, सब कुछ होता है, बट वो जो एक फोकस है, और नहीं तो बस ऑनेस्ट रहो, इट्स ओके, आज 2 घंटे हुई कोई बात नहीं, कल कॉम्पनसेट करना है, लेकिन अपने आप से सच बोलो कि नहीं मैंने आज कम किया है। यू हैव टू, मतलब अपने आप से सच बोलना ही पड़ेगा। वेल पूजा, थैंक यू सो मच, आपकी स्टोरी इतनी इंस्पायरिंग है थैंक और यू। इतनी ऑनेस्टली आपने अपनी जो जर्नी को आपने डिस्क्राइब किया है, जो बताया है, जो आपने स्टेप्स बताए हैं, जो आपने टिप्स दी है कि स्टूडेंट्स किस तरीके से फोकस कर सकते हैं, चाहे वो ऐप यूज करना हो, चाहे फोन पे वॉलपेपर लगाना हो। मैं तो इनफैक्ट स्टूडेंट्स को बोलूंगा कि अपनी वॉल पे लगा लीजिए, नॉट जस्ट योर मोबाइल फोन, अपने वॉल पे आप ऐसा एक वॉलपेपर पेस्ट कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको आरजेएस बनना, इफ इट इज योर ड्रीम, अगर वो आपका ड्रीम है और अगर आपकी सोच रखा है कि मुझे आरजेएस बनना ही है, तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। यू जस्ट हैव टू बी ऑनेस्ट एंड यू जस्ट हैव टू बी कंसिस्टेंट विथ योर प्रिपरेशन। वेल पूजा, thank you so much for joining us and sharing your journey with us. We wish you all the very best and I wish you a very happy Diwali in advance हैप्पी and दिवाली। God bless you. थैंक यू सर।